स्क्रीन शेयर करनी है विप्रो। So, good evening, everyone. I am Veer, a third year blockchain student, and first of all, a very warm welcome to SATI, our college. So, how has your experience been so far? I hope you are enjoying your time. So, आप लोग अपना थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? Hello, am I audible? यात्तर हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके गाइस, सो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करने से पहले अपने कॉलेज की वीडियो देखते हैं। ओके, सो प्लीज। some or the other new contraption which makes their life just a little bit easier. And since ancient times, engineers have completely changed the world we live in. They designed and built the Aztec and Egyptian pyramids, the Great Wall of China, and the Hanging Gardens of Babylon. Today, we have our modern homes, bridges, cars, space travel, and the latest mobile technology. Innovative ideas are at the heart of what engineers do, and they use their knowledge to create new and exciting prospects and solve any problems that may arise. Because of the immense craze for engineering, especially in India, it is important that aspiring engineers carefully choose their college. Since there has been a mushrooming of engineering institutes set up only to exploit this craze, and students from such colleges fail to get relevant jobs. What if I told you you can erase negative thoughts, overthinking, and childhood trauma permanently from your life by rewiring your brain? The Samrat Ashok Technological Institute, located in Vidisha in Madhya Pradesh, is one college that has been striving to establish and maintain academic excellence in the field of technology. We are working on 4P. 4P means in first year, we are working on the problem. In the second year, in the same problem, our students are writing the project. And in third year, our students are making the product. It may be actual or virtual. And in fourth year, our students goes to patent or placement. Established in 1960 as a grant and aid autonomous college, the institute started with PE in civil, mechanical, and electrical engineering. Today, it offers a lot more. So as of today, we are having ओके गाइस, सो वीडियो कुछ लैग कर रहे हैं, सो मैं इसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। So first of all, let me introduce our Inspire. So what is Inspire? तो बेसिकली इंस्पायर एक टेक्नो स्पिरिचुअल क्लब है जो काफ़ी सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में अक्रॉस कंट्री ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो आपके टेक्निकल और स्पिरिचुअल बोथ ग्रोथ पे फोकस करता है। सो व्हाट वी डू इज, हम भगवत गीता के कुछ टॉपिक्स लेते हैं और उससे हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उसे लाइफ में एक्चुअल में कैसे हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो इसी का एक कोर्स है डिवाइस डिस्कवर योरसेल्फ, जिसमें हम भगवत गीता के कुछ बेसिक टॉपिक्स लेंगे और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। सो फॉर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस गौरव सर। सो गौरव सर एक एनआईटी भोपाल के पास आउट हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक किया था एनआईटी भोपाल में। और
और एज अ मैथ्स फैकल्टी इन्होंने एक काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में सर्व किया है. सो लेट मी वेलकम गौरव सर. Okay, thank you, Veer sir. So, thank you very much, everyone for joining. I will switch on my video if you will also switch on your videos. So, I can see Ayush, Gaurav, yes, Chanchal, Tarun, Ashish, Dheeraj. So, is it possible to switch on your videos? या ऐसे ठीक है? सर वीडियो ऑन होगा तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, है कि नहीं? वीडियो ऑफ रहेगा तो हम कुछ भी करते रहेंगे, खाली हमने ज्वाइन करके रखा है ऐसा. Okay, so first of all, let me know your basic introduction. Just like Ayush, you can switch on your video and you can tell about your. My voice is not clear. सभी के पास क्लियर नहीं है क्या? केवल यस को नहीं सुनाई दे रही है? यस सर, क्लियर है. ओके, थैंक यू धीरज. ओके, आई कैन सी. ओके, अपने ब्रांच का नाम बता सकते हैं फटाक से सभी? एक एक करके सभी अपने ब्रांच का नाम बता दीजिए. ओके, हर्षित वर्मा लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल. ओके, बाकी क्या ऐसा ऐसा नहीं है क्या, या कोई ब्रांच मिली नहीं आप लोगों को? ओके, तरुण, एमई, सीएससी, कृष्णा सीएससी, यस मैकेनिकल, आयुष गर्ग इलेक्ट्रिकल. ओके, नाइस. आईटी, डब्ल्यू, धीरज, गौरव. ओके, ठीक है. ओके, आई हैव स्विच्ड ऑन माय वीडियो. थोड़ा पर्सनल होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, है ना? वीडियो ऑन रहता है थोड़ी फीलिंग आती है. मैं क्या लैपटॉप को लेक्चर दे रहा हूँ मैं, है ना? होता है कि नहीं होता? तो अपना सुंदर चेहरा, है ना, ब्यूटीफुल स्माइल, है ना, यू कैन आल्सो स्विच ऑन योर वीडियोस. ओके, सार्थक, कृष्णा, नाइस, नाइस टू सी. और सर चेहरा दिखाने लायक नहीं है. ऐसा है क्या? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. सो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली हॉस्टल में कुछ ऐसा ही माहौल रहता है, कई बार वीडियो ऑन करने की पोजीशन में हम नहीं रहते. नो प्रॉब्लम. तो देखिए, हमारा ये जो कोर्स होता है, ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर आईआईटी एनआईटी में एक कोर्स होता है, वेरी पावरफुल कोर्स. ओके, आई कैन सी आल्सो धीरज. वापस स्विच ऑफ कर लिया. ओके, नो प्रॉब्लम. तो इट्स वेरी पावरफुल कोर्स. DYS, क्या मीनिंग है इसका फुल फॉर्म? डिस्कवर योर सेल्फ. इसका क्या मीनिंग हो सकता है? आपको क्या लग रहा है, नाम सुन के क्या लग रहा है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कोर्स, डिस्कवर योर सेल्फ? सर क्या डिस्कवर करना है उसमें, हम तो पता ही अब हमको. पूछिए आपको यस सार्थक. हाँ बताइए सार्थक, बताइए. अपने आप को जानना। अपने आप को क्या जानेंगे, हम तो जानते ही हैं, आप सार्थक हैं, आप तो जानते ही अपने आप को. डिस्कवर योरसेल्फ का मतलब तो यही हुआ, अपने आप को जानना। यस करेक्ट. डिस्कवर मतलब जैसे हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, लेकिन क्या हिडन फॉर्म में है, उसको डिस्कवर करना है.
हाँ, स्क्रिप्चर्स वेदास, है ना, बार बार रिमाइंड करते हैं कि देखिए अनलिमिटेड नॉलेज, ये भी हम देखेंगे साइंटिफिक तरीके से, देखेंगे किस तरीके से जो मेमोरी है होती है, या जितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं इस दुनिया में, हम चिप्स वगैरह में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करेंगे ये सब, उससे ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं हमारे माइंड में, इतना पावर है। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड पीस। शांति की तलाश करते हैं ना, लेकिन शांति मिलती नहीं है ना, सफरिंग सफरिंग। लगता है कि एक बार कॉलेज में एडमिशन हो जाए, है ना, फिर सब मस्त हो जाएगा, नहीं फिर ये फिर से स्ट्रगल होता है, हॉस्टल में इतना स्ट्रगल होता है, अकोमोडेशन को लेके, फूड को लेके, है ना, डाइट को लेके, सर ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा खाना मिल रहा है वैसा खाना मिल रहा है, ऐसे रहने को मिल रहा है। हम्म, तो उसमें कैसे सरवाइव कर सकते हैं, और किस तरीके उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी, है ना, अपने आप को, हाँ, डिस्कवर, मतलब जो इनर क्वालिटीज है उनको डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब केवल उनका फेस ही नहीं करना, उसमें निखर के आना एक तरीके से। हम्म, तो जो अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे अंदर है उसको डिस्कवर करना इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और ये कोर्स कोई, जैसे बताया, आईआईटी जेएनआईटी हर जगह होता है, और ये आपके कॉलेज में ये हो रहा है लगभग पिछले 8 से 10 सालों से हो रहा है। आप पहले पार्टिसिपेंट्स नहीं है कि आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2018-19 से तो फर्स्ट सेशन जनरली मैं ही दे रहा हूँ। आपके सीनियर्स, सुपर सीनियर्स हैं, सब कनेक्टेड है। धीरे धीरे आप देखेंगे भी आपके डिवाइस 1 2 3 4, उसमें ग्रेजुअली देखेंगे आप अपने सीनियर से मिलेंगे, जो 2020 के पास आउट हैं, 21 22 23 24 25 के पास आउट हैं। वो आपको कुछ कुछ इंट्रोड्यूस भी करेंगे जो अलग अलग फील्ड में अच्छी पोजीशन पे भी वर्किंग भी है, अच्छी कंपनी। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो अपने सीनियर से कनेक्ट हो सकते हैं, है कि नहीं, गाइडेंस ले सकते हैं, और अच्छे कैरेक्टर वाले सीनियर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो रियली जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग में, पता है आपको, है ना, रैगिंग रैगिंग होती है क्या अभी आप लोगों की? अभी तक हुई क्या किसी की रैगिंग? अभी कम हो गई है वैसे एसएटीआई में। पहले एसएटीआई और हमारा जो एनआईटी भोपाल था, एमएससीटी के नाम से खूब रैगिंग हुआ करती थी उधर। किसी की नहीं हुई रैगिंग? होनी चाहिए, थोड़ी होनी डिसिप्लिन आता है उससे। तो सीनियर्स को बोलता हूँ मैं थोड़ा रैगिंग लेने के लिए, आप लोग मजाक कर रहा हूँ। ओके, नाइस टू सी ऑल। तो आपके कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स हो, आपके सीनियर्स रहेंगे, जैसे आपके थर्ड ईयर में भी वीर सर हैं, हर्षवर्धन सर हैं, आदित्य सर हैं, हाँ, फाइनल ईयर में भी आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं, और ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर में भी हैं, और कुछ तो सेकेंड है ना, और पास आउट भी है, एलुमनाई भी बहुत सारे हैं आपके। इवन आपके वर्किंग, जो अमेरिका में भी वर्किंग है इस तरीके से, जो अलग अलग जगह पे हैं, अभी आए थे एक फैकल्टी एलुमनाई, तो उनका भी प्लान था आपके लिए एक सेशन करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, ऑफलाइन होने का था वो। ओके, तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक ग्लिम्स दूंगा मैं आपको, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कि वो शॉर्ट इंटरेक्टिव और, है ना, फनी सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन होने वाले हैं, इंटरेक्टिव होने वाला है, ऐसा नहीं मैं प्रवचन करने वाला नहीं हूँ भैया। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, ठीक है, बी लॉजिकल, बी एवरीथिंग, ठीक है। और जितना इंटरेक्टिव करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, और यू विल लर्न। आपको आप बताइए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट्स द गोल ऑफ लाइफ? आप क्या करना चाहते हैं जीवन में? सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था अपने भोपाल में, मेडी जी, है ना, जो उससे करते हैं कोचिंग वोचिंग, और एक अपनी दूसरी इंजीनियरिंग सर्कल इसी करके, आपने सुना होगा नाम। उसके बाद मेरा है ना, फिर जैसे कुछ पीएसयू में जाना चाहते हैं, कुछ अलग फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, ये बनना मेरा जीवन का लक्ष्य है, या एक, है ना, अच्छा बंगला होना, है ना, और अच्छी फैसिलिटीज होना।
तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं। आप में से कुछ शेयर करना चाहेंगे तो इट विल बी रियली नाइस। तो वुड यू लाइक टू शेयर कि व्हाट्स द गोल ऑफ लाइफ योर, आपका लक्ष्य क्या है जीवन में, आप क्या करना चाहते हैं? कि कोई लक्ष्य नहीं है, बोले सर हम बस जो चल रहा है वैसे चलते जाएंगे, क्या है देखा जाएगा जो भी होगा, या कुछ गोल है आपके जीवन में? ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। एक 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 सक्सेसफुल इंजीनियर बनना फिलहाल तो यही है। सक्सेस ऐसी वाली इधर इधर रखी हुई है। हेलो। हाँ हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, बताइए। सर मेरा लक्ष्य है कि मुझे लोगों को सर्व करना है। लोगों को सर्व करना है, यार नाइस। सर्व इन सर्व इन द सेंस कि जो बच्चे होते हैं जो ऐसे मतलब अनाथ होते हैं, ऑर्फन। या फिर जिनकी फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि वो कुछ अच्छी चीज अफोर्ड कर सकें, हम्म तो उनके लिए एक एनजीओ बनाना। हम्म ऑलरेडी एनआईटी भोपाल के स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं। अवंती कुलम करके एक प्रोजेक्ट है, जो अलग अलग जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जिनमें बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे जा जाके इस तरीके से ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके नाइस, इट्स सेल्फलेस। मतलब यस सर। जनरली दम लगता है ना कुछ, मतलब जनरली क्या होता है ये कि व्यक्ति खुद के लिए ही करना चाहता है ना। कम से कम सोच तो लो यार, सोचने में क्या जाता है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके थैंक यू। ओके चैट में लिखा है कृष्ण ने, अचीविंग ट्रू हैप्पीनेस। या अल्टीमेटली ये सब करके हमको क्या चाहिए? जॉब चाहिए, बोले अच्छी वाइफ चाहिए, जॉब चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, क्यों चाहिए? मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हैप्पीनेस, खुशी चाहिए ना। नाइस। ओके ठीक है, टॉपिक पे आते हैं आज हम। तो डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ, इसका जस्ट मैं एक पीपीटी फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी सेशन लेने वाला हूँ, उसके बाद आपके ही एसएटी के सीनियर्स बेसिकली ये सेशन लेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ। एक्चुअली क्या, लाइफ एक गेम की तरह है। जैसे क्रिकेट खेलना किस किस को पसंद है? कौन कौन क्रिकेट खेले? ओके हरिओम, सार्थक। बाकी का वीडियो ऑफ है तो आप डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं। इसमें जैसे रिएक्ट करने में है ना जो ऑप्शन है रिएक्ट, उसमें जाएंगे तो आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है। ओके, तो गेम में क्या होता है, चैलेंज लेने में मजा आता है ना। कि यार लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर में आपको चाहिए 20 रन, चाहिए 20 रन। तीन छक्के एक चौका। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब चैलेंज, जब चैलेंजिंग को तो बहुत मजा आता है। उसी तरीके से लाइफ भी एक गेम की तरह है। हम्म, और जब हम इसको गेम की तरह खेलना सीख जाते हैं तो मतलब स्ट्रगल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम मतलब मायूस नहीं हो जाते, दुखी नहीं हो जाते, अरे सर ऐसा हो गया हमारे साथ तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक गेम की तरह उसको है ना प्ले करते हैं, खेलते हैं, है ना। तो दिस इज एन आर्ट, ये कला है एक तरीके से। तो इसी से बेस्ट, चलो आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, आप तुरंत पूछ सकते हैं, फटाफट जाने वाला हूँ मैं, है ना। 1.5 आवर्स का ये पीपीटी स्लाइड होता है, ये मैं 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप सब ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल हैं, इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ओके, एनिमल वर्सेज ह्यूमन, नाइस। ओके, व्हाट इज एवरीवन सर्चिंग फॉर, बताइए फटाक से। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर व्हाट?
अनम्यूट करके बताइए फटाक से, इसमें कुछ मतलब हेजिटेशन की है ना, संकोच का नहीं, कोई गलत भी हो जाएगा तो हो जाएगा, इसमें थोड़ी आपके नंबर कट रहे हैं। Everyone searching for peace. एवरीवन इज सर्चिंग फॉर Peace. पीस, ओके नाइस, हेलो। यस। हरिओम बताइए, आशीष बता रहे थे, कौन बता रहे थे, बताइए। एक आंसर आया पीस, ओके, हाँ पीस, ठीक है, पीस और हैप्पीनेस, ओके। और देखिए क्या क्या तरीके होते हैं, देखिए अलग अलग तरीके हैं। बचपन में बैलून मिल जाता तो हम खुश हो जाते हैं, अभी आपको बैलून देंगे तो आप खुश हो जाएंगे यार, नहीं, अभी कुछ और चाहिए आपको, है ना। स्पोर्ट्स से आप, है ना, पहले स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाए तो बस हैप्पीनेस मिल जाती है कि नहीं। कुछ समय के बाद में स्पोर्ट्स में भी नहीं होता, फिर और कहीं मन लग जाता है। उसके बाद, फिर उसके बाद मनी, मनी इज स्वीटर देन हनी, है कि नहीं। और उसके बाद में तो, है ना, दादा दादा दादू दादू बोलते हैं पोते तो अच्छे लगते हैं। तो देखिए अलग अलग स्टाइल्स है, हेयर स्टाइल्स, ऐसे हेयर स्टाइल्स क्यों बना रखी है बताइए, फैशन, वो वो चाहे क्लोथिंग को लेके हो या हेयर स्टाइल्स हो। इंटरेस्टिंग ने, आप में से भी किसी को पसंद है क्या ऐसे फैशन? ऐसे हेयर स्टाइल, हो सकता है आपके हॉस्टल में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, फर्स्ट वाले तो मिल ही जाएंगे इस तरीके से, ये तो ज्यादा हो गया तो। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग, उनको हैप्पीनेस चाहिए भैया कोई ना कोई तरीके से, क्या क्या नहीं करते भैया हैप्पीनेस के लिए। देखिए स्काई डाइविंग, कई बार तो स्काई डाइविंग हो जाता है, स्काई से कूदने के चक्कर में व्यक्ति वही है ना, उसका राम नाम सत्य हो जाता है इस तरीके से। डेयर डेविल एक्टिविटी एक्ट्स करते हैं, क्यों करते हैं? आपने देखा यूट्यूब वगैरह पे इस तरीके से बहुत सारे लोग अ, ऐसे रिस्की मतलब काम करते हैं, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। देखा। मतलब ऐसे लगे कि थोड़ा सा भी ऐसे करेगा तो ये मर जाएगा व्यक्ति, मतलब फिर भी वो करते हैं, क्यों? रील्स पे जब व्यूज आएंगे ना तो अच्छा लगेगा उसको, है? तो केवल मतलब ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब करते हैं। ओके, हाँ ये ना अच्छा टॉपिक है। देखिए अभी आप फर्स्ट ईयर में जस्ट आप आए हैं, आप थोड़े समय बाद में देखेंगे आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें एक चीज स्टार्ट हो जाती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग। अभी तो शायद नहीं करते होंगे आपके साथ वाले कोई भी, या आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो ये बताइए कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वगैरह ये सब क्यों करते हैं? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने का मतलब क्यों करते हैं, मतलब आखिर मतलब क्या? आप नहीं करते होंगे लेकिन जो करते हैं वो क्यों करते हैं? आदत होती है दोनों, आदत हो जाती है। आदत हो जाती है, ये किन्होंने बताया? सार्थक? नमन। नमन, ओके, आदत हो जाती है, लेकिन आदत क्यों हो सर जाती? यस, सर कूल बनने के चक्कर वो में करने करते से हैं। उनका यस कूल है। ओ यू आर इंजीनियर, यार स्मोकिंग नहीं किया मतलब क्या है, मतलब गट्स है, मतलब स्मोकिंग करने के गट्स हैं तुम में? इस तरीके से सीनियर्स इंस्पायर करते हैं, मतलब गट्स नहीं है वाले। हाँ, बी कूल यार, बी कूल, क्या इतना सीरियस हो रहा है, बी कूल। तो बी कूल होने के चक्कर में क्या, पहले तो वो फ्री में पिलाते हैं, फिर आप है ना वो धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हो, तो फिर वो सीनियर्स को पिलाते हैं। देखा है सर? आपने भी नहीं देखा होगा, धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा। मेरे को तो ऑलरेडी है ना 10-15 साल हो गए है ना कॉलेज के एक्सपीरियंस से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से। हाँ, तो होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है, तुरंत मजा आता है, तुरंत मजा,
कूल हो जाता है व्यक्ति, टेंशन खत्म। क्या होता है बायो के टर्म्स में, जैसे आपके अभी हम उनका डिवाइस हो रहा था आपके अ, अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना विदिशा में आपका, तो वो बायो वाले रहते हैं, उनको सब आइडिया आइडिया होता है, वो तुरंत बता दिया सर डोपामिन हार्मोन इससे रिलीज होता है और तुरंत हैप्पीनेस मिलता है सर हमको। क्या इंजीनियर्स को थोड़ा सा ये हार्मोन हार्मोनिक क्या है थोड़ा सा रिलेट करने थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। 10th क्लास में स्टडी किए थे बोले, हम तो बाद में नहीं किए। हाँ, तो तुरंत मजा आता है, हमको भी तो तुरंत मजा चाहिए ना, रील्स देखते हैं ना 2-3 सेकंड में मजा है इस तरीके से। तो तुरंत मजा, लेकिन बाद में सजा होता है हो जाती है वो, है ना। लंग्स किडनी लीवर है क्या क्या खराब नहीं हो जाता है व्यक्ति का, है। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है अपना लॉन्ग टर्म कैरियर बर्बाद कर देता है। वैसे तुरंत तो मजा आ रहा है ना, क्या दिक्कत है। तो क्या हो शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच पाता व्यक्ति। तो ये प्रॉब्लम है उसमें। और फिर तो क्या होता है एडिक्शन होता है, वो सब आपको पता है क्या क्या उससे प्रॉब्लम्स फेस होती है, व्यक्ति का पैसा भी जाता है, व्यक्ति का एनर्जी भी जाता है, रेपुटेशन भी जाती है व्यक्ति की, और फिर लास्ट में हेल्थ भी खराब हो जाती है कि नहीं। अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा सर हम तो नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप फाइनल ईयर में देखेंगे तो इट्स कॉमन, मतलब कॉमन हो जाएगा मतलब सर। आजकल तो गर्ल्स भी मतलब गर्ल्स के लिए भी कॉमन है, पहले क्या इंडिया में मतलब भारत में ऐसे गर्ल्स तो नहीं करते थे इंटॉक्सिकेशन वगैरह। अब कंपनीज वगैरह में आ गया, कॉर्पोरेट लाइफ में आप जाएंगे ना, आप सीनियर से इंटरेक्ट करेंगे, आप पूछेंगे, तो गर्ल्स गर्ल्स आगे हो गए ये कुछ कुछ तो इस मामले में। तो देखिए किस तरीके से कल्चर खराब हो रहा है। तो हम जनरली क्या सोचते हैं बताइए, मतलब हैप्पीनेस प्राप्त करने का अच्छा तरीका क्या है भैया, अच्छा खाने को मिल जाए हमको, पिज्जा बर्गर ये वो, है ना, चाइनीज आइटम नूडल्स ये, तो मजा आ जाए, है कि नहीं। तुरंत तो मजा आता है ना ये सब आइटम खाने में, फिर पेट खराब होगा दिक्कत बात अलग है ना। स्लीपिंग फैसिलिटीज अच्छा हो, मेटिंग फैसिलिटीज अच्छा हो, अच्छा पार्टनर मिल जाए हमको, और डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना बेसिकली। लेकिन देखिए आप एनिमल्स में, एनिमल्स भी करते हैं सारी एक्टिविटीज, सिंपल देखिए उनका भी फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी मजे करते हैं, बढ़िया पार्टी वार्टी करते हैं, है ना, उनका भी फन होता है, फैमिली होती है। देखिए ईटिंग की बात करें तो बताइए कौन ज्यादा ईटिंग का मजा ले सकता है, खाने का ज्यादा मजा आप ले सकते हैं कि हाथी ले सकता है, एलिफेंट। इसने बताया था सर इंस्टेंट डोपामाइन, यस करेक्ट। एलिफेंट की डाइट ज्यादा होती है कि हर्षित की डाइट ज्यादा है, कि कृष्ण के सार्थक की डाइट ज्यादा है। तरुण की डाइट ज्यादा लग रहा है। एल, एलिफेंट सर। क्यों, कितनी डाइट होती है एलिफेंट की। एलिफेंट का पेट बड़ा होगा सर। पेड़ बड़ा होता है, डाइट भी बड़ी होगी। करेक्ट। खाने का जितना मजा आप ले सकते हो उतने मतलब हाथी ले सकते हो उतना आप नहीं ले पाएंगे। आप 4 नो गुलाब जामुन सर। खाएंगे, 5-6 गुलाब जामुन खाएंगे उसके बाद सर सर अभी और नहीं हो पाएगा। आप में से को कुछ आए थे ना अभी स्टूडेंट्स, हैं, तो ज्यादा स्वीट वीट ज्यादा भी हमारी डाइट की है ना लिमिटेशन है। ओके स्लीपिंग, ओके सोने का मजा कौन ले सकता है सबसे ज्यादा, आप कितना सो सकते हैं मैक्सिमम बताइए। हमारे एग्जाम मेरे को याद है एंटम एग्जाम फिनिश हुई थी एनआईटी भोपाल में फर्स्ट ईयर की, उसके बाद में मेरा रूम पार्टनर सोया था, वो रात में सोया था, दूसरे दिन शाम को उठा वो। मतलब he slept almost मतलब 24 hours। प्रभु जी, मैं एक बार 15 घंटे सोया था, रात को 12 बजे सोया और हम्म दोपहर को उठा था फिर डायरेक्ट 3 बजे। हम्म, तो अच्छा रिकॉर्ड बनाया मैंने। लेकिन क्या आप पोलर बियर के बराबर सो सकते हैं क्या, नहीं प्रभु जी। कितना सो सकता है पोलर बियर। 6 महीने। हाँ 6 महीने सो सकता है। शायद शायद।
हम्म। ओके। उसके बाद मेटिंग। मेटिंग इज बेसिकली सेक्स लाइफ। आपके लिमिटेशंस है, आप ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। और लेकिन एनिमल्स जैसे पिजन वगैरह है ना, वो ज्यादा भी कर सकते हैं। व्यक्ति ज्यादा करेगा तो उसको बहुत प्रकार की डिजीज हो जाएगी, बीमारियां हो जाती है उसको, है। तो नेचर ने ऐसा बनाया नहीं, उस चीज के लिए हम बने ही नहीं है। ह्यूमन लाइफ किसी और पर्पज के लिए है। लेकिन ये पिजन है, कुत्ते बिल्ली है, तो ये डजन्स ऑफ डजन्स इनके चिल्ड्रन होते, बच्चे होते हैं, है ना? तो हम उसमें भी हम पीछे रह गए, मतलब। फिर है डिफेंडिंग। इनका डिफेंडिंग सिस्टम देखिए कितना अच्छा है कुत्तों का। तो इस तरीके से हम देखें, एनिमल्स भी कम नहीं है भाई, है ना। जिन तरीकों से हम आनंद खुशी प्राप्त करना चाहते हैं उनमें तो एनिमल्स भी कम नहीं है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये दोनों में कॉमन ही है भाई। तो फिर क्या अलग है, मतलब एनिमल ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है आपको? आप बोल सकते हैं सर देखिए, ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, ही सोशल एनिमल, है ना, बिना पूछ का जानवर है वाले सर। सोफिस्टिकेटेड एनिमल है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो क्या सही है क्या? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर ओपिनियन? आगे आप जब कंपनी के लिए बैठेंगे ना, ग्रुप डिस्कशन करना होता है उसमें, है ना। इंटरव्यू वाले के साथ, है ना, चर्चा होती है, कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है। तो इतना ऐसे कुछ, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें। रिस्पॉन्स आना चाहिए आपकी तरफ से, ऐसा नहीं ऐसा ठीक है क्या। बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपका आंसर सही ही हो, मतलब गलत भी बता सकते हैं आप। आपके नंबर नहीं कटने वाले, आपकी बेइज्जती नहीं होने वाली है यहाँ पे। बताइए, क्या सेम है क्या, या कोई अंतर है? हाँ, बोलते हैं। सर वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। यही डिफरेंस मिला आपको, वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। हाँ, करेक्ट है, मतलब वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। मतलब इंसान भी अजीबो गरीब है भाई। इसको जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है, मतलब सिंह लो। होता है ना। तो इस तरीके से वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता है। लेकिन और बताओ कुछ प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मोर लॉजिकल। नहीं, इंटेलिजेंस क्या लगता है आपको, सेम होती है एनिमल से? इंटेलेक्चुअल होता है क्या एनिमल्स भी, मतलब बुद्धि होती है उनमें, दिमाग होता है यस सर। इंसान के बराबर? नो सर। इंसान के बराबर तो नहीं होता है। इंसान के बराबर तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन काफी कुछ होता है। देखिए, हम बिल्ली को देखते हैं, कितना दिमाग लगाती है घर में दूध पीने के लिए। हाँ, तो होता है, लेकिन उसका यूज कैसे कर रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इंटेलिजेंस ज्यादा होने से थोड़ी कोई व्यक्ति, मतलब ह्यूमन है वो सुपीरियर हो गया एनिमल से, ऐसे थोड़ी होता है। अब ओसामा बिन लादेन जो था, वो भी तो इंजीनियर ही था आप लोगों की तरह, और वो इंटेलिजेंस कम थी क्या उसमें? बताइए, आप में ज्यादा इंटेलिजेंस है कि उसमें ज्यादा इंटेलिजेंस थी? क्या लगता है आपको? आसूस बताएंगे। आपका नाम आसूस है कि मोबाइल का नाम आसूस? लादेन में ज्यादा दिमाग था कि आप में ज्यादा दिमाग है? वो भी आप ही की तरह इंजीनियर ही थे, आपके सीनियर ही थे। उसमें ही होगा है? ओके, हर्षित बता रहे हैं। यस।
सर उनमें ही होगा। उनमें नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे तो भी चलेगा। है, जी सर। उसमें ही था। तभी तो इतना कुछ वो कर पाया, है कि नहीं? मतलब गवर्नमेंट को भी चैलेंज करना, इतना कुछ करना आसान थोड़ी है। लेकिन उसका यूज क्या किया भैया? कैरेक्टर नहीं है ना। इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है भैया, इंटेलिजेंस होने से कुछ नहीं होता, कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटेलिजेंस हो तो ठीक है, लेकिन उसका पर्पज क्या है? है ना? उसको डिवाइन पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो कि आप मतलब टेररिस्ट बनने के लिए यूज कर रहे हो? दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो फटाक से बताते जाइए क्या क्या स्पेशलिटी है इनकी। क्या देख रहे हैं आप? ईगल। ईगल हो गया, क्या खास बात है इसकी? इसकी नजरें तेज होती हैं। यस, करेक्ट। यस। हॉर्स। यस। ये तेज भाग सकता है। यस, इट्स नोन फॉर इट्स रनिंग कैपेसिटी। यस। काय के लिए? ये तो सबको पता है कुत्ता है वाला, लेकिन ये काय के लिए फेमस है ये? किस चीज के लिए जाना जाता है? ये अलर्ट रहता है। यस, अलर्ट रहता है, वेरी लॉयल। और इसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। हमको स्मेल नहीं आएगी, वो ये स्मेल कर लेगा दूर से। इसलिए इसको देखिए हाँ। बम्स वगैरह में मिलिट्री में बहुत यूज करते हैं। ईटिंग, एलिफेंट। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग। ये क्या है? ये कोयल है, कुकू। हम्म, तो कितना स्वीट वॉइस होता है कि नहीं? हम्म। हाँ, एनिमल्स आल्सो हैव रेशनल पावर इंटेलिजेंस, उनमें भी दिमाग होता है, वो भी लगाते हैं। हैं? और कुछ कुछ फील्ड में तो देखिए वो मतलब इंसान से भी श्रेष्ठ है। खतरनाक ना? मतलब फायदा ही क्या हुआ फिर ह्यूमन बनने का? बट ह्यूमन बीइंग हैव एडवांस टेक्नोलॉजी वेयर एज एनिमल्स डोंट हैव। वही सोशल मीडिया उनके पास नहीं है, हमारे पास वाले। इसका फायदा क्या हुआ यार? सोशल मीडिया होने से मतलब फायदा क्या हुआ आगे जाके आप देखेंगे। एक्चुअली ये सब होने से बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो बायो वाले ज्यादा जानते हैं, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से क्या होता है, व्यक्ति के हार्मोन से रिलीज नहीं होते, इमोशन से नहीं होते। दो व्यक्ति आसपास पास पास में बैठे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मोबाइल में चैटिंग करें, अरे सामने बैठा है, उससे बात कर लेना यार। थोड़ी फीलिंग आएगी, इमोशंस आएंगे, लव, कंपैशन, है ना? और सोशल मीडिया में बैठा है, उसके हार्मोन से रिलीज नहीं होते, वो मतलब एकदम मतलब लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करता है। ये भगवान ने सबको कंप्लीट बनाया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी के जमाने में? व्यक्ति मतलब सबके साथ रहते हुए उसको लगता है अकेलापन लग रहा है, एम्प्टीनेस वो बोलते हैं, खालीपन उसको खाता रहता है? लेकिन जब हम भगवत गीता या फिर स्पिरिचुअल इस प्रकार के जब किसी कोर्स से कनेक्ट होते हैं, अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है, तो फिर वो लोनलीनेस नहीं रहती है, वो एम्प्टीनेस वो लाइफ में नहीं रहती है इस तरीके से। तो इसमें सोशल मीडिया इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी व्यक्ति क्या होता है? डिससेटिस्फाइड, फुल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस्ड। आगे कंपनी लाइफ में जाएंगे आप, अभी आपको लग रहा है चलो कॉलेज में स्ट्रेस है, कंपनी में भी वही रहता है। आपको रिपोर्टिंग करना होता है, बॉस बोलता है ना, ये आपको टास्क दिया था, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना? बहुत सारा लोड आ जाता है, सडन सडन लोड आ जाता है। तो फिर फायदा क्या बोले? पहले के लोग ही अच्छे थे बोले फिर। और सबसे अच्छी बात आपने सुना कि देखिए जो अलग अलग जो एनिमल्स के सोसाइटी रहती है, कुत्ते रहते हैं, बिल्ली रहते हैं, सुअर रहते हैं, गो गौ माता है, भैंस है? तो देखा कहीं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं या कोई उपद्रव मचा दिए हैं, रॉइट्स कर दिए हैं, या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया हो? ऐसे सुना आपने? एक गली नो। एक गली में कुत्ता बैठा था, जो कि धीरज जहाँ पे रहते हैं, धीरज के घर के सामने, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने सोचते सोचते फांसी लगा ली उसने। ही कमिटेड सुसाइड। ऐसा सुना क्या? नहीं। नो सर। हाँ, या कोई ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है, कोई बंदर है उसने नशा कर मतलब बोले डेली डेली ड्रिंकिंग की हैबिट पड़ गई उसको, कई बार करते भी है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना?
लेकिन मनुष्य इतना एडवांस होकर टेक्नोलॉजी में कर क्या रहा है, मतलब हैप्पीनेस के चक्कर में क्या, मतलब जानवरों से भी नीचे गिर गया, मतलब इस तरीके से। तो मतलब फिर इतना एडवांस होने का फायदा ही क्या हुआ? करेक्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई कम से कम हम्म, कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है तो कम से कम वो है जो एनिमल्स है उनसे तो सुपीरियर रहे कम से कम। देखिए भैया, नो ड्रग अब्यूज, नो डिवोर्स, तलाक तलाक भी नहीं होते, बोले वो शादी नहीं करते सर। वो भी सही है, मतलब इतने कल्चर्ड ही नहीं है कि वो शादी करे, मतलब। तो व्यक्ति को मतलब क्या, कौन सुपीरियर बनाते हैं? हाँ, ये महाभारत का एक फेमस श्लोक है, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत आसान श्लोक है। हाँ, क्या बताया है इसमें? आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानः। देखिए जी, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जो चार चीजों की हम बात कर रहे थे अभी पूरा, वो यहीं से लिया था महाभारत के, जो ये श्लोक है वहीं से हमने ये चार चीजें ली थी। हाँ, वो क्या बता रहे हैं इस श्लोक में महाभारत में? ये तो सामान्य है, ये एतत् पशु भी नराणाम, जो पशु है और नर है मनुष्य, उनमें सामान्य है, कॉमन है ये। बोले वो भी ये चार चीजें करते हैं, हमने पूरी डिटेल में चर्चा की, हम भी वही करते हैं। तो बोले अंतर ही क्या हुआ, मतलब ह्यूमन बीइंग और बोले इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो उसका यूज क्या कर रहे हो भैया आप? देखिए डिफरेंस क्या है, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, एक धर्मी उनमें अधिक है, विशेष है, स्पेशल है। एक व्यक्ति का धर्म का पालन नहीं करेगा व्यक्ति तो क्या होगा, धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना व्यक्ति पशु के समान हो जाते हैं। अब धर्म क्या होता है सर? बहुत सारे धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई सिख धर्म, है ना? सर आप ये क्या बता रहे हैं, आप क्या वो सेक्युलर? हम तो वी आर सेकुलर, हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम आप कैसे बात कर सकते हैं धर्म की? अरे धर्म वो नहीं होता जो आप ये सोचते हैं, ये हम आगे जाके डिटेल में चर्चा करेंगे। धर्म तो होता है इनहेरेंट नेचर, सत्य चित आनंद, ये हमारी आत्मा का धर्म होता है, सोल का। अब सोल होती है क्या सर? हाँ, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे, आपके डिवाइस जो होने वाले हैं उसमें पूरा डिटेल में टॉपिक होगा। सही में सोल होती है क्या, सुपर सोल होते हैं क्या, भगवान होते हैं क्या? क्या शास्त्र स्क्रिप्चर्स दे आर बोनाफाइड है? और डिटेल में जाएंगे, हुज गॉड, भगवान कौन है, धर्म का मतलब क्या होता है? सर इतने सारे धर्म क्यों? सर धर्म के नाम पे तो झगड़ा होता है, इतने धर्म की बात करने की जरूरत क्या है? हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे, ये होता है वो होता है, नहीं, धर्म दंगे नहीं करवाता है। देखिए, साइंस है, साइंस को मतलब इसलिए नहीं बनाया गया कि भैया दो देश दो नेशन आपस में लड़ाई करें, है ना, बहुत इधर बहुत नुकसान हो जाए उधर बहुत नुकसान हो जाए, एकदम पावर्टी आ जाए, है ना, इसलिए नहीं वेपन्स बनाए गए हैं। वो उसका मिस यूज है, उसी तरीके से मिस यूज ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन, तथाकथित जो धर्म है ये, तो इनका दुरुपयोग करने से वो फाइटिंग होती है। धर्म तो होता है इनहेरेंट नेचर हमारा सोल का, सत्य चित और आनंद, हाँ, वो डिस्कवर करना, दैट इज और धर्म, ट्रू नेचर। जैसे चीनी का धर्म होता है मिठास, मतलब मिठास ही नहीं है तो फिर काय की चीनी, इस तरीके से सत्य चित और आनंद, हम हमेशा शाश्वत इटरनल रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, फुल ऑफ नॉलेज में रहना चाहते हैं, वो हमारा धर्म है। हाँ, तो ये देखिए, धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत बोल रहे हैं, महाभारत में लिखा है। Okay, would you like to read this the translation? कोई भी आपने रीड कर सकते हैं ट्रांसलेशन। The activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. We human beings are considered superior only when they inquire about the higher dimensions, science, evolving the wisdom about God, His creation, His laws, and the secret of true inner fulfillment in life. Otherwise, they are considered just like animals. Yes, thank you। देखो अंतर क्या है, धर्म मतलब दे कैन इंक्वायर अबाउट हायर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड,
कैन मेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ। तो उसमें देखिए क्या क्या हो सकते हैं। ये बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में नहीं आता है। जैसे आज है ना, रात के समय कभी आप बाहर बैठे रहते हैं, देखते हैं इतने सारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, है ना, चांद है। अरे कौन है ये, बनाने वाला कौन है, ये सूरज धरती किसने बनाया, ये कैसे चल रही है ना। मैं कौन हूँ, मतलब समझ में नहीं आता, मतलब कि किसी परिवार में पैदा हो गया, लेकिन मैं हूँ कौन, मतलब मरने के बाद कहाँ चला जाऊंगा, मतलब। हाँ, तो दीज आर हायर प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके माइंड में आते हैं क्वेश्चंस। जैसे महात्मा बुद्ध की स्टोरी आपने सुनी होगी, सिद्धार्थ रहते हैं, तो उनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, इतनी सफरिंग क्यों है भाई लाइफ में। हाँ, गॉड इज वन, देन व्हाई सो मेनी रिलीजन्स, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू, अरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है सर। नो जॉब कर्मा। तो ये सब चीजें इसमें डिस्कस हो जाएगी। तो कि हमारे हाथ में क्या है, चॉइसेस। आप चाहे तो आप ये सेशन अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। कोई आपको है ना फोर्सफुली तो नहीं बोल सकते कि आपको करना ही है क्या नहीं। और ये तो आपके आउट ऑफ सिलेबस ही एक तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आता है, तो इट्स टोटली योर चॉइस, फ्री विल। लेकिन आप कर ये कोर्स अटेंड करके डिवाइन क्वालिटीज को आप है ना डेवलप करते हैं, है ना, उनको रिवाइव करते हैं, तो क्या होता है, फायदा आपका ही है। आपके अंदर मान लीजिए कोई अच्छी क्वालिटी है, मतलब डेवलप होती है ना, ये कोर्स करके, है ना, डिवाइन पावर से कनेक्ट होके, तो फायदा किसका है। गार्डन में एक अच्छा फूल, सुगंधित फ्रेग्रेंट फ्लावर रहता है, तो सुगंध किसको आएगी वही मालिक को ही आएगी, जो गार्डनर जो है। उसी तरीके से अच्छी क्वालिटी से तो फायदा आपको ही है ना, फ्रेग्रेंस आपको ही आएगी। तो उसी तरीके से जो बेड फ्रूट्स है, डेमोनिक क्वालिटीज है। हम्म, ऐसा आप मतलब कुछ आप पौधा लगाए हैं कि मतलब बांस बांस मार रहा हो, है ना, कांटे ही कांटे हैं उसके, तो नुकसान किसका है? आप ही का नुकसान है ना। तो अच्छी क्वालिटी डेवलप करने से फायदा आपका ही है भैया, मेरा तो फायदा नहीं है ना, है। तो इस तरीके से राइट चॉइस बनाने से फायदा आप ही का अल्टीमेटली। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी तो आपको ऐसे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देती है। जैसे आपको विदिशा से भोपाल जाना है और आप जा रहे हैं गंज बसोदा की तरफ, है ना, तो डायरेक्शन ही उल्टी हो गई ना आपकी, ऐसा। तो कुछ हम है ना स्मार्ट वर्क के बारे में चर्चा करते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हम्म तो इसमें कुछ आपके टिप हैं, ये और भी डिटेल में डिस्कस होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये आपकी बुक ऑफ लाइफ है, आपके 100 साल 100 पेज है, आप मान लीजिए। आप इनको कैसे लिखते हैं वो आपको डिसाइड करेगा कि आपकी बुक, है ना, आप जो ऑथर हैं बुक के, हैं, आपकी बुक कैसी होगी, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू यू राइट योर बुक ऑफ लाइफ। इस तरीके से भी आप लाइफ जी सकते हैं। और दूसरा ये देखिए कैसे फ्रस्ट्रेट हो रहा है बंदा, है कि नहीं, एंगर में एकदम, तो चॉइस इज योर्स। देखिए सिंपल परिवार है ना, मतलब नॉट वेरी वेल्दी, बट इट्स वेरी वेल्दी, लॉट्स ऑफ मनी, बट लव बैंकरप्ट फैमिली, है ना, डिवोर्स है, ये है वो है तो देखिए कितना फ्रस्ट्रेट है। और घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के लिए माला बना रहे हैं, सिंपल एकदम, दे आर वेरी हैप्पी। तो ये मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे, क्या मूवी वगैरह देखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, ऐसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, और वैसा स्टैंडर्ड हो नहीं पाता, तो व्यक्ति बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, है ना। एक है ना, मूवी लाइफ अलग होती है प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है भाई। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, चैरियट ऑफ द बॉडी एनालॉजी। आप बता सकते हैं, पहले कभी सुना आपने। देखिए आप ऐसे बताइए, चैरियट आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, 5 घोड़े हैं, रस्सी है, और
उसको ड्राइवर है और उसके साथ में पैसेंजर बैठा हुआ है और चैरियट है। तो कौन किसको कंट्रोल करता है और सुप्रीम कंट्रोलर कौन है यहाँ पे? किसके ऊपर कौन है? देखिए 5 घोड़े हो गए है ना, 5 हॉर्सेज, रोप हो गई, रस्सी हो गई, है ना, ड्राइवर हो गया, पैसेंजर हो गया, चैरियट हो गया। तो कुछ बता सकते हैं इसमें कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल करने वाला तो मतलब ड्राइवर को बोल सकते हैं हम। ओके, वो क्या कंट्रोल करता है बताइए? वो हॉर्सेस को कंट्रोल कर रहा है, उनके मूवमेंट को। कैसे, किसके माध्यम से? वो रस्सी के माध्यम से जो वो उसके करेक्ट, गले में है। करेक्ट, करेक्ट, थैंक यू हर्षित। तो यही कंसेप्ट है एक्चुअली, सिंपल सिंपल है, लेकिन देखिएगा इसी ये एनालॉजी है वास्तव में। खाली इससे देखिए क्या टीचिंग मिलेगी ना। 5 जो हॉर्सेज है, दे आर कंपेयर टू 5 सेंसेज, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, है ना, ये सब, त्वचा, जीभ, है ना, आई, ईयर, नोज, है ना, स्किन एंड टंग। इनको कंट्रोल कौन करता है? माइंड करता है, सेंसेस के ऊपर माइंड है। जैसे हमारी टंग बोलती है चल यहाँ दुकान पे बहुत अच्छा है, बोले नहीं ये पिज्जा बर्गर खाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, माइंड मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है ना? फिर माइंड भी बोला नहीं नहीं यार खा यार, मजा आएगा, तुरंत मजा मिलेगा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, हमें तो, है ना, यंग है, हेल्दी है, मजे ले यार। तो फिर क्या होता है? माइंड भी डेविएट हो रहा है, तो फिर इंटेलिजेंस का रोल आ जाता है। देखो माइंड मतलब क्या है? माइंड में डाटा जो स्टोर रहते हैं, मेमोरी कार्ड की तरह है। मतलब माइंड में क्या, मन भटकता रहता है, मतलब मन तो हमारा क्या क्या करना चाहता है पता नहीं। माइंड के भी ऊपर क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जिसके शार्प है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का नॉलेज है, विजडम जिसके पास में, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं विजडम, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो वो क्या माइंड को कंट्रोल कर लेगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाती है उसके पास में। जैसे सीपीयू होता है ना लैपटॉप में, हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जो पहले डब्बा रहता था साथ में, उसमें पीसी के साथ में, वो इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। हाँ, वो कर लेगा उसको कंट्रोल करने का, वही तो उसका मेन होता है, ब्रेन। तो वो है हमारी इंटेलिजेंस। तो ये एक, हाँ, एक श्लोक है वास्तव में भागवतम का। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, हम डे टू डे लाइफ में हमारे सेंसेज हैं, उनको कंट्रोल करना है। अरे भैया माइंड के थ्रू कंट्रोल करते हैं, माइंड भी भैया इधर उधर जा रहा है तो इंटेलिजेंस को साफ कीजिए आप, फिर उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो पैसेंजर है दैट इज सोल, और जो चैरियट है वो क्या है? हमारी बॉडी है। बहुत, ये इसको डिटेल में इसकी बाद में आप डिस्कशन होगा आपके नेक्स्ट डिवाइस में कि किस तरीके से सेंसर्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। हाँ, तो एक आता है, केवल आंख के कारण ऐसा कोई जीव है ना? चलो ठीक है, आपको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। आप बता सकते हैं, देखिए हमारे 5 सेंसेज है, अभी हमने देखा, केवल एक सेंस के कारण ऐसे ऐसे जानवर है उनकी मौत हो जाती है उसके कारण, आंखों के कारण, है ना, आइज। आंखों से वो कोई अच्छा देखना चाहता है, और अच्छा देखने के चक्कर में क्या होता है? वो स्वाहा हो जाता है उसका, ही मेट्स टू डेथ। बता सकते हैं? आपने नेचर में ऑब्जर्व किया हो किसी ऐसे, है ना, किसी को देखा हो आपने, स्पेशली रेनी सीजन में जो कुकिंग करते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस होगा। आप में से कौन कौन गांवों से बिलोंग करते हैं? कभी चूल्हा देखा आपने? चूल्हे पे जो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, यस सर। उसमें देखा बारिश के मौसम में कुछ कीट पतंग आते हैं सीधे चूल्हे के अंदर, हाँ, एंट्री कर जाते हैं एकदम। तो क्या आंखों के कारण, बेसिकली बिकॉज ऑफ आईज, उनको लगा कि हाँ देखिए क्या सुंदर आ गए है ना, क्या लपटे हैं, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, बोले वाह सो ब्यूटीफुल, एंड दे एंटर एंड दे मीट टू डेथ। कानों के कारण, जो हिरना होता है ना, हिरण, डियर, उसको बांसुरी बजा के, बांसुरी की आवाज से, है ना, फ्लूट, तो उससे व्यक्ति वो शिकारी पकड़ लेता है। फिश जो मछली होती है, उसको टंग, कांटा फंसा देते हैं उसमें, वो पकड़ ले जाते हैं। तो सेंसेस कंट्रोल नहीं होने के कारण वो एनिमल तो एक एक सेंस कंट्रोल नहीं है, हमारे तो पांचों ही सेंसेस मतलब
अनकंट्रोल्ड रहते हैं, तो हम हमको कंट्रोल करना तो और ही मुश्किल काम है। इसका इंटेलिजेंस है ना, ये शास्त्रों का ज्ञान, डिस्क है ना, जो ये डिवाइस, तो ये बहुत, इट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, है कि नहीं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी डिटेल में चर्चा आपके नेक्स्ट डिवाइस सेशंस में होगी। ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो कुछ हमारी इननेट क्वालिटीज होती है, पहले से ही होती है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। और कुछ क्या होता है, मतलब कुछ एक्वायर करते हैं हम आसपास के सराउंडिंग में, जो हमारे जैसा एसोसिएशन होता है उनसे हम वो क्वालिटीज एक्वायर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मूड ऑफ होना, पोस्टपोन होना, ये सिंपल बैड क्वालिटीज हम किसी से एक्वायर कर लेते हैं। कुछ सीरियस, है ना, इजिली इरिटेट होना, ये सब चीजें। टीम प्लेइंग नहीं होना, एक साथ मिलके काम नहीं कर पाना। कुछ क्या होता है, बेड माउथिंग, है ना, इंटॉक्सिकेशन वगैरह की, ये सब गलत हैबिट हमारी पड़ जाती है इस तरीके से। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लिख रहे हैं, हमारी, है ना, आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क है। दूसरा होता है, आपने नाम सुना होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, है ना, पर्सनल डेवलपमेंट यस कोर्स सर। होता है। बताइए क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब होता है अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना। ओके, सॉफ्ट स्किल्स मतलब क्या। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। अपने गोल्स। मतलब सर जो कि टेक्नोलॉजी से डिफरेंट होती हैं जो स्किल्स, वो सॉफ्ट स्किल्स। ओके, सॉफ्ट स्किल, बेसिकली पर्सनालिटी थोड़ा सा और अलग होता है। वो मतलब जो ये जो आप बता रहे हैं, वो एक्सटर्नल फीचर्स सामने आ रहे हैं, कैसे वो बात कर रहा है, उसके, है ना, हाव हाव क्या है, ये सब चीजें वो, जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें भी ऑब्जर्व करते हैं, गेस्टर्स, पोस्चर्स, ये सब चीजें उसमें जो रहती है। तो यस, वो होती है। लेकिन वो मतलब ये सब चीजें आ कहाँ से रही है, मतलब इनहेरेंट, वो मतलब है, ये हमारी पर्सनैलिटी बनाते कौन है, मतलब। तो ये देखिएगा आप, ये आता है भगवत गीता में। बेसिकली हमारी तीन चीजों पे डिसाइड होती है हमारी पर्सनैलिटी, है ना। मोड ऑफ गुडनेस सत्व गुण में होते हैं। सत्व गुण में मतलब नॉलेज होता है उन लोगों के पास में, हैप्पीनेस होती है, ऐसे एकदम खुश रहते हैं जीवन में, बिंदास रहते हैं एकदम। इतना टेंशन झमेला है, बात बात पे इरिटेट होना, ये सब नहीं। जैसे गौ माता की तरह एकदम शांत। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं एकदम रजोगुण, भैंस की तरह, या टाइगर, शेर की तरह, एकदम चिल्लाएंगे, एकदम सर पे चिल्लाएंगे ऐसे, तूने ऐसे नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, बॉस वगैरह थे, आप कंपनी में जाएंगे तो देखेंगे ये सब। कुछ होते हैं तमोगुण में, एकदम डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, एकदम सोते रहेंगे, इग्नोरेंस में, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है इनके पास। तो तीन प्रकार की पर्सनैलिटी होती है बेसिकली। हाँ, देखिए, ये जो, ये है सबसे पहला है मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। जैसे लोमड़ी है, फोक्स आप देख रहे हैं ना, इसकी क्या खास बात होती है, बता सकते हैं। फॉक्स चालाक होती है। चालाक होती है, और वो इतनी आलसी होती है, कभी भी खुद शिकार करके नहीं खाती। जो कोई शिकार करके खा के छोड़ देता है ना, बस उसको खाती है, इतनी आलसी होती है। हाँ? तो ये देखिए, मोड ऑफ इग्नोरेंस के क्या क्या सिम्टम्स हैं। आपने इसको पढ़ी है क्या इसको। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी है क्या। लेजीनेस, ओवर स्लीप, इनअटेंटिव, आगे पढ़िए। नो वन, पालक आप पढ़िए। है सर। हम्म, ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ना, उनको कौन रीड आउट कर सकते हैं। सर, यस। लेजीनेस, ओवर स्लीप, इनअटेंटिव, पोस्टपोन्स एंड
hopeless, depression, madness, suicidal thoughts, intoxicated, confused, foolish, indecisive, insecure, fearful, panicky or cry, no thinking. यस, तो ये भगवत गीता में आते हैं। मोड ऑफ जो इग्नोरेंस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मोड ऑफ पैशन में देखिए क्या होता है, इसको भी एक बार रीड आउट कीजिए। Partial thinking, overambitious to see and show glamour, cutthroat competition, pride, angry, individual player, envious, thirst for honor and prestige, bossing tendency, attached, snapped decisions. यस, तो ये होता है रजोगुण, जैसे शेर है उस तरीके का। इंडिविजुअल प्लेयर होता है, किसी साथ टीम वर्क नहीं करेगा, बस अकेला क्रेडिट लेना चाहेगा। संग और तृष्णा, बहुत आसक्त होता है चीजों से, हैंकरिंग होती है, बस ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मतलब लाइफ बर्बाद है, इस तरीके से। बोसिंग टेंडेंसी होता है, और एम्बिशियस होता है, पार्शियल थिंकिंग होती है, कट थ्रोट कंपटीशन, प्राइड, ये सब चीजें। ओके, हर्षित के अलावा और कौन रीड कर सकते हैं मोड ऑफ गुडनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स? कीजिए आप, कोई भी कर सकते हैं, रीड आउट कीजिए। Sir, cleanliness, regulation, simplicity, thoughtfulness, thinks well and decides, noble, saintly, creative thinking, realize wisdom, tolerance, submissiveness, friendly, calm and clear, controlled senses, compassionate, discipline and obedience, controlled mind, forgiveness, wisdom. Yes, that, thank you, Naman. So this is mode of goodness. तो ये क्वालिटी मोड ऑफ गुडनेस आ कैसे सकता है, मतलब हमको सबको यही चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस ही चाहिए, सतोगुण ही चाहिए, सुख और ज्ञान, पर्सन इज इन नॉलेज एंड इन हैप्पीनेस। लेकिन आएगा कैसे, है कि नहीं? तो इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। मोड ऑफ गुडनेस कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं। एक कैप्सूलर रहता है, ये सब आप जानते हैं स्टोरी। वो एक जंगल से होके जा रहा होता है, एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा था, खराटे ले रहा होता है, बढ़िया। खराटे लेते लेते क्या होता है, बंदर उसकी सारी टोपियां लेके ऊपर चला जाता है। हम्म, तो अब ये बताइए, वो है ना, यदि मोड ऑफ इग्नोरेंस में है तो कैसे रिएक्ट करेगा? और मोड ऑफ पैशन में है तो कैसे रिएक्ट करेगा? और मोड ऑफ गुडनेस में है तो कैसे रिएक्ट करेगा? मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण में है तो कैसे रिएक्ट करेगा, रजोगुण में है तो कैसे रिएक्ट करेगा, तमोगुण में हो तो कैसे रिएक्ट करेगा? बताइए, क्या लगता है आपको? जो भी लगता है बता सकते हैं। अगर सर वो रजोगुण में होगा तो उसे लगेगा कि मैं टोपियां बेचने लाया था और यहाँ तो बंदरों ने ले लिया, पर मेरा तो नुकसान हो गया। उसे गुस्सा आएगा। करेक्ट, उसको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो क्या कर सकता है वो? सर वो बंदरों को पीट भी सकता है। हाँ, अब उनको पेटने का प्रयास करेगा या पत्थर लेके फेंकेगा, तो उल्टा रिएक्शन क्या होने की संभावना है? बंदर भी सर उसको पीटेंगे। पीटेंगे, बढ़िया धुलाई होगी, उसको तो अकेला है बेचारा। कैच करते हैं बढ़िया वो, उनको क्रिकेट खेलना अच्छा आता है, बॉलिंग अच्छी करते हैं वो, कैचिंग भी अच्छी रहती है हम्म। वो। ओके, करेक्ट। मोड ऑफ पैशन में ऐसा हो सकता है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या होगा? रजोगुण, रजोगुण तमोगुण मतलब आलस्य, निद्रा, प्रमाद, लेजी है, इग्नोरेंस में है व्यक्ति, तो वो क्या करेगा? सर वो सोता रहेगा, बोलेगा क्या करना है, इससे अच्छा सो ही लेता मैं। करेक्ट, बोलो बस मेरे भाग्य में नहीं लिखा, बर्बाद हो गया मैं तो, बस छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता है। और मोड ऑफ गुडनेस में होगा तो क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? सर वो फिर सोचेगा चलो कुछ नहीं होता, बंदर ही तो हैं। अगर वो टोपी लेकर खुश हो रहे हैं तो खुश हो जाने दो, टोपियां तो फिर नहीं, ये तो सही है, वो नॉलेज में रहेगा। विजडम, विजडम मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम आने पे तुरंत उसको नॉलेज रहेगा कि क्या करना चाहिए, दिमाग लगाएगा, इंटेलिजेंस का यूज करेगा, हाँ क्या कर सकता हूँ मैं इस सिचुएशन में, तो क्या करेगा वो? बंदर नकल करते हैं, एक चीज क्या हम्म। कर सकता है वो, किस अपनी टोपी
उतार के फेंकेगा तो बंदर भी अपनी अपनी टोपी उतार के फेंकेंगे और वो कलेक्ट कर लेगा। दूसरा क्या कर सकते हाँ, हैं वो, जैसे आप वृंदावन डांस। वृंदावन वगैरह जाते हैं ना, तो उनको कुछ फ्रूटी वगैरह दे दो, कुछ ऐसा आइटम दे दो जो उनका अच्छा हो, तो वो फेंक देते हैं जो उनके पास में होता है। तो इस तरीके से विजडम इंटेलिजेंस का यूज करेगा वो। तो ये होता अगर है। उसने दोनों रख लिए तो, हाँ अगर उसने कैप भी रख ली और मतलब जो अपन ने दिया वो भी रख लिया। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेसिकली पॉइंट क्या है, वो विजडम का यूज करेगा, इंटेलिजेंस का यूज करेगा। कुछ ऐसा आइडिया लाएगा कि मतलब उसको टोपी भी मिल जाए, मतलब सांप भी मर जाए, उसकी लाठी भी नहीं टूटे। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ उसको ऐसा मतलब वो प्लान कर ही लेगा, क्योंकि उसके पास विजडम है, वो किसी से हेल्प लेगा या कुछ भी ऐसा करेगा वो, और वो सक्सेसफुल हो ही जाता है जनरली। नहीं होगा तो फिर वो अलग चीज है फिर, है ना। फिर भी वो मतलब शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, चलो भगवान की इच्छा है कि नहीं। तो इस तरीके से, लेकिन अपना प्रयास करेगा वो। तो इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी होती है देखिए। तो सत्वगुण और रजोगुण दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। राजर्षि पहले के जो राजा होते थे वो इस तरीके से होते थे। अब अपने जो गुरु होते थे उनसे वो गाइडेंस लिया करते थे। भले ही वो चंद्रगुप्त हो, चाणक्य से गाइडेंस ले रहे हैं, वो भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज हो, तुकाराम महाराज से गाइडेंस ले रहे हैं, तो कोई ना कोई सेंट्रली पर्सन से इस तरीके से जो किंग हुआ करते थे वो गाइडेंस लिया करते थे। तामसिक मतलब क्रिमिनल लॉ ब्रेकर, ये होता है नोबल लीडर। तो ये मोड ऑफ गुडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम वही स्टडी करने वाले हैं, मोड ऑफ गुडनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एसोसिएशन कैसा है हमारा, बुक्स कैसे रीड करते हैं, चेंटिंग मेडिटेशन जो है, डाइट एक्सरसाइज, ये सब हमारे मोड ऑफ गुडनेस को अफेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट ये सब चीजें। हम्म, तो जनरली चेंटिंग करने से क्या होता है, देखिए मतलब मेडिटेशन करने से क्या होता है, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, अल्फा जोन में रहती है ना। 8 से 13 के बीच में जब वेव फ्रीक्वेंसी रहती है तो व्यक्ति रिलैक्स रहता है। उसे कम और ज्यादा होने पे, वो वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पे क्या होता है, या तो स्लीपी जोन, ड्राउजीनेस जोन में चला जाता है, या फिर बहुत एक्टिव जोन, हाइपर एक्टिव जोन में चला जाता है। ये बायो वालों को और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पता होता है। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम चर्चा करते हैं, चलो, टाइम मैनेजमेंट का। ये जब लोग एमबीए करते हैं ना, जैसे बीटेक करने के बाद आप एमबीए, हो सकता है कोई कुछ लोग एमबीए करें, तो एमबीए में ये कंसेप्ट डिस्कस होता है टाइम मैनेजमेंट का। ये देखिए अलग अलग हार्मोन्स है जो गैजेट्स यूज करने से रिलीज नहीं होते, डोपामाइन, एंड्रोफिन, कैरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, है। बायो वालों को ज्यादा पता होता है ऐसी चीजें, वो रिलीज नहीं होते हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आपको बताता हूँ मैं, एक क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें कुछ टास्क होते हैं हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं। जैसे किसी का कॉल आया तो वो क्या है, मान लीजिए किसी का इंपॉर्टेंट कॉल है, तो वो क्या है, अर्जेंट भी है, तुरंत ही उठाना पड़ेगा, अभी पिकअप नहीं करूंगा तो फिर पिकअप नहीं कर पाऊंगा। और इम्पोर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट है मतलब कोई हमारे फील्ड से रिलेटेड है। हाँ तो ऐसा हो गया। या मान लीजिए कल आपके एग्जाम है, तो स्टडी करना क्या है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है कि नहीं। ये होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्वाड्रेंट सेकंड मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे आपके 6 महीने बाद एग्जाम है सेमेस्टर के एंड में, अभी एग्जाम नहीं है, तो स्टडी करना क्या है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, भैया थोड़ा बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, है कि नहीं। तीसरा है कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी का कॉल आ रहा है, बोले अर्जेंट है, उठाना, पिकअप करना है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट का क्वाड्रेंट क्या हो सकता है, क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट, है कि नहीं। जैसे गप्पे मारना, है ना, फालतू पार्टियां करना, इंटॉक्सिकेशन करना, है ना, मूवी देखना, फोन देखना। तो इस तरीके से क्या मतलब, न तो इम्पोर्टेंट है वो, ना अर्जेंट है, तो वेस्ट है। अनप्रोडक्टिव एंगेजमेंट, टाइम वेस्टर्स, डिलीट इट, है, डेलीगेट इट, डिसाइड इट, डू नाउ। इसमें बताइए जो क्वाड्रेंट ऑफ मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है, कौन सा वाला काम पहले करना चाहिए अपने को। जो अर्जेंट भी हो और इम्पोर्टेंट भी। ओके, और कोई, ये एमबीए का है मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये एमबीए का टॉपिक है। मतलब आपका जो आंसर होगा वो सही होगा, गारंटी नहीं है उसकी। ओके, और कोई। जो इम्पोर्टेंट हो बट अर्जेंट नहीं हो। क्यों।
सर मतलब इम्पोर्टेंट तो होना ही चाहिए, अगर अर्जेंट नहीं होगा तो भी चलेगा। तो मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट क्यों नहीं? जैसे कल तो एग्जाम है। क्वाड्रेंट फर्स्ट। हम्म। हम्म। जैसे मान ली कल एग्जाम है तो मेरे को तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ गया तो वो करना चाहिए ना। तो क्वाड्रेंट वो तो सेकंड अगर मतलब। एक दिन पहले कर रहे हो तो वो फिर अर्जेंट में आ जाएगा। हम्म। और लेकिन कोई अगर बता हम सके? पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। यस दैट्स द आंसर। आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे तो वो क्या होगा, वो इस क्वाड्रेंट में लोड नहीं आएगा आपके पास में। वो अर्जेंट क्वाड्रेंट नहीं होगा ना। वो अर्जेंट नहीं होगा, करेक्ट। नहीं तो क्या होगा कि मतलब आप इसी पे अब ऐसा काम करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले ही स्टडी करते हैं, ये इंजीनियर्स की खास बात है कि नहीं? लेकिन कई बार क्या ये होता है कि एकदम क्राइसिस हो जाता है, डेडलाइंस आ जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, हेल्थ क्राइसिस हो जाती है, पढ़ाई भी करनी है, हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर रही, बहुत एकदम से लोड आ जाता है। तो इंटेलिजेंट आइडिया क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी पे हम फोकस करें। ये सब चीजें हैं। तो ये 5S फॉर्मूलाज हम चर्चा करेंगे। ये वाई मिलेनियर्स है ना, ये भी अच्छा एक वीडियो है, इसको बाद में कभी देखेंगे। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि मिलेनि जो सक्सेसफुल पीपल है ज्यादातर है वो सुबह 4 बजे क्यों उठते हैं। ये 5S फॉर्मूला अपन जो अभी नेक्स्ट जो आपके डिवाइस के सेशंस होंगे, जो आपके अलग अलग पास आउट सीनियर्स या जो आपके करंट सीनियर्स हैं, वो इस पे और चर्चा करेंगे, है ना। पहला हमारा जो रहेगा, फर्स्ट एस सोल, हु एम आई, वेरी इंटरेस्टिंग, सोल का कंसेप्ट है। दूसरा रहेगा ये आपका सुप्रीम, इज देयर सम सुप्रीम डिवाइन पावर, ये सूरज धरती चांद वाले सब मैं ही तो चला रहा हूँ, साइंटिस्ट तो चलाने वाले हैं। तीसरा स्क्रिप्चर्स पे हम स्टडी करेंगे, बाइबल हो, गीता हो, नहीं है अलग अलग। चौथा सॉल्यूशंस, अब केवल हम प्रॉब्लम्स पे चर्चा नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस में क्या होता है, प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, परफेक्ट वैदिक विजडम। और फिर है साउंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी सेंटिमेंटल नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कहीं पे कुछ जाएंगे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी चाहो कुछ भी पूछ सकते हो। है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। तो हम आगे भी रहेंगे, और आपके कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं उसको बेधड़क। और ये कोई है ना सेंटिमेंटल भी नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन भी नहीं है ना, भावुकता मतलब भावुकता के आधार पे कर रहे हैं ऐसा नहीं, दिस इज ए साइंस, हायर साइंस है, मेडिकल साइंस से भी आगे आपकी। ओके, अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कुछ फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया तो हम लेट भी स्टार्ट किए थे, लेकिन आप सभी स्टार्टिंग से एंड तक सभी हैं अभी तक। कोई क्वेश्चन, कुछ शेयर करना चाहते हैं, आज की क्लास से कुछ अच्छा लगा हो? क्या टेक अवे पॉइंट क्या लेके जा रहे हैं आप? सर ये जो आपने तीन गुण बताया है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, हम्म। इन सभी के अंदर वो सारी क्वालिटीज आ जाती है जो इंसानों के अंदर होती है मतलब। हाँ लगभग, उनके अलावा को बचा ही क्या मतलब, या तो इसमें होगा या उसमें होगा या इसमें होगा, एक और होता है, इन तीनों से परे चले जाता है वो, मतलब वो क्या होता है? प्योर गुडनेस होता है, शुद्ध सत्व गुण। उसमें क्या होता है, व्यक्ति मतलब डिवाइन क्वालिटीज होती है एकदम उसके अंदर। जनरली मोड ऑफ गुडनेस मतलब क्या, डिवाइन क्वालिटीज नहीं, लेकिन उससे भी ऊपर चला जाता है वो। गुडनेस मतलब क्या होता है, मटेरियल में ही आता है, लेकिन डिवाइन क्वालिटीज लेकिन मटेरियल क्वालिटीज, मतलब हम्म। मॉरल वैल्यूज इस तरीके से। लेकिन नॉर्मली आप यही मान के चलिए, वो भी क्या होता है, प्योर गुडनेस होता है, मतलब उसमें मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं होता बेसिकली।
ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एक बार आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी, तो अच्छा होगा। एक ग्रुप फोटो हो जाएगी हमारी। ओके, आशीष, धीरज, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, हर्षित, हरे कृष्ण, तरुण, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। नाम ही कृष्ण है इनका। आप सभी तो हरे आए थे कृष्णा लगभग सर। ना? हरे कृष्णा। ओके, ग्रुप फोटो में नमन भी आ यस गए हैं। सर। हरिओम, सार्थक, पालक, आदित्य, आशुष। बस 2-3 और बचे हैं। दैट्स इट। सभी कॉलेज आ गए ना अभी तो? ओके। ओ पालक, सोचा कि बॉय। ओके, थैंक यू। हाँ, पालक नहीं पलक है मेरा नाम। ओके पलक, ओके थैंक यू। आपको समझ में आया? रिलेट कर पा रहे थे आप? जी सर। ओके, थैंक यू। आपका आपको अलग से कनेक्ट कर देंगे, आपके जो सीनियर्स है ना, गर्ल्स सीनियर्स, उनसे यस आपको सर। कनेक्ट कर देंगे। आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं आगे फ्यूचर ओके में। सर। ओके, सो ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो कल फिर से मिलेंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे। आई विल आल्सो ट्राई, मैं भी रहूंगा। ओके, थैंक राधे राधे सर। हरे कृष्ण प्रभु।